फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू एनएस इंग्लिश एकेडमी। दिस इज सोनिया और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कंप्लीट लिस्ट। सी, दिस इज द लिस्ट ऑफ ब्रिटिश टेक्स्ट, रिपीटेड टेक्स्ट दैट अपीयर्ड इन योर एग्जामिनेशन रिपीटेडली. सो यू नीड टू जस्ट मग अप दीज ऑल टेक्स्ट अलॉन्ग विथ ईयर ऑफ पब्लिकेशन. वन बाय वन मैं आपको टेक्स्ट बताऊंगी, बट रिमेंबर, जो भी मैं आज टेक्स्ट बताने वाली हूँ, दीज आर स्पेसिफिक फॉर मॉडर्न age of British literature, right? So let's start. First we have the Rainbow, which is written by D.H. Lawrence and published in the year 1915. Next we have Women in Love, 1920 publication and again written by D.H. Lawrence. Next we have Sons and Lovers, that was 1913 publication written by D.H. Lawrence. And number 4 we have A Portrait of the Artist as a Young Man. This is by James Joyce, published in the year 1916. Ulysses by James Joyce, published 1922. Same year The Wasteland by T.S. Eliot, revolutionary work published. Okay, so इस तरीके से आपने sustain रखना है अपने mind में to just link to different text published same year. Okay, next we have Mrs. Dalloway. This is by Virginia Woolf, most important, published 1925. Okay, next we have To the Lighthouse. This is also important, in fact repeat in examination, published 1927 and this is also written by Virginia Woolf. You know what is the special things of these all text? One thing, ये हमेशा आपके एग्जामिनेशन में रिपीट होते हैं. सेकेंड थिंग इज दैट जब आप PYQs लगाएंगे देन यू चेक योर सेल्फ आपके कितने सारे क्वेश्चंस होंगे जो ईजिली राइट क्लिक हो रहे होंगे जस्ट बिकॉज आपके पास ये सिक्योर है कंप्लीट लिस्ट ऑफ मॉडर्न टेक्स्ट ऑफ ब्रिटिश लिटरेचर. ओके, सो नेक्स्ट वी हैव ऑर्लैंडो. दिस इज अगेन बाय वर्जीनिया वुल्फ, पब्लिश्ड इन द ईयर 1928. नेक्स्ट वी हैव मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐसे और आप कह सकते हैं लेक्चर ऑफ और बाय वर्जीनिया वुल्फ, A Room of One's Own, that was published 1929. Most important from this essay or you can say particular lecture, right? यहाँ से आपको famous lines examination में पूछी जाती है. So you need to study complete text of A Room of One's Own, right? Next we have The Waves. This is again by Virginia Woolf, published 1931. The Wasteland, I have told about it, by T.S. Eliot, published 1922. 4 quartets. This is also which is actually consist in 4 parts. ये भी आपका T.S. Eliot का है. 4 parts का आपको chronology याद रखना है. Okay, that was basically published 1943. The Love Song of J. Alfred Prufrock. This is most important poem written by T.S. Eliot, published 1915. Next we have The Second Coming, that is by W.B. Yeats, again important, 1920, right? And next we have Sailing to Byzantium. This is also important and of course the poem by W.B. Yeats, published 1928. और इनका जो कलेक्शन था द टावर, उसमें ये बेसिकली पब्लिश हुआ था. एंड द टावर ये इनका पोइट्री कलेक्शन है टीएस आपके W.B. Yeats का, जो 1928 पब्लिकेशन है, right? Next we have Look Back in Anger. This is also important by John Osborne, published 1956, right? Next we have Waiting for Godot. This is Samuel Beckett, most important, published 1953. Okay, next we have Endgame. This is again by Samuel Beckett, published 1957. Let's move on the next, Lords of the Flies. This is by William Golding, again and again repeat in your examination, published 1954. इसमें कुछ किड्स का स्टोरी है जो आइलैंड पे फंस जाते हैं. इसे भी आपने डिटेल में स्टडी करना है, यहाँ से आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं. ओके, और नेक्स्ट वी हैव लकी जिम. दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट बाय किंस्ले एमिस, पब्लिश 1954. ओके, एंड नेक्स्ट वी हैव द गोल्डन नोटबुक. दिस इज मोस्ट रेलिवेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. इनफैक्ट जॉरिस लेजिंग का है जो आपका 1962 में पब्लिश हुआ है. यहाँ से भी आपको डिटेल स्टडी करना है. द ग्रास इज सिंगिंग, अगेन इंपॉर्टेंट बाय डॉरिस लेजिंग. डॉरिस लेजिंग आपके इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. इनके टेक्स्ट आपसे उसकी क्रोनोलॉजी पूछी जाती है. 1950 पब्लिकेशन है बेसिकली. नेक्स्ट वी हैव द पावर एंड द ग्लोरी. दिस इज बाय ग्राहम ग्रीन, 1940 पब्लिकेशन. द बर्न्ट आउट केस. दिस इज अगेन बाय ग्राहम ग्रीन, published 1960. Okay, next we have A Room with a View. This is by E.M. Forster. Now E.M. Forster के आपको टेक्स्ट देख के जाने ही जाने, क्योंकि यहाँ से भी आपको क्रोनोलॉजी पूछी जाती है. वेल, A Room with a View ये इनका 1908 पे पब्लिश हुआ है.
हार्वर्ड एंड भी आपके EM फोस्टर का है, दैट वॉज पब्लिश्ड 1910. And guys, next we have A Passage to India. This is most important novel written by EM Forster that was published 1924. Okay, and next we have Brave New World. This is most important text written by Aldous Huxley, published 1932. And next we have 1984. Now you will have to study in detailed manner 1984. This important novel written by George Orwell, which was published 1949. Now this is important because यहाँ से आपको समराइज क्वेश्चन मिलता है, सो यू नीड टू स्टडी इन अ डिटेल्ड मैनर. बहुत ही अच्छी स्टोरी है. वंस इफ यू रीड यू नेवर फॉरगेट एवर इन योर लाइफ. नेक्स्ट वी हैव एनिमल फॉर्म. दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट वन, जॉर्ज ऑरवेल का 1945 पब्लिकेशन. Next we have The Road to Vegan Pyre. Now this is by George Orwell again and published 1937. Lord Jim Joseph Conrad का 1900, इसे भी आपने डिटेल में स्टडी करना है. हार्ट ऑफ डार्कनेस, जोसेफ कॉनरेड का 1899 पब्लिकेशन. इन बुक फॉर्म में इसको 1902 में पब्लिश किया था. दिस इज अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट. नाउ नेक्स्ट वी हैव द सेक्रेट एजेंट. दिस इज अगेन बाय जोसेफ कॉनरेड, दैट वाज पब्लिश 1907. तो फ्रेंड्स, ओवरऑल मेरे पास मल्टीपल टेक्स्ट हैं जो आपके रिपीट होते हैं फ्रॉम द ब्रिटिश लिटरेचर, स्पेशली मॉडर्न एज. तो इफ़ यू आर विलिंग टू गेट दिस कंप्लीट फाइल, जहाँ पे मैंने टॉप 100 आपके टेक्स्ट सिक्योर किए हैं अलॉन्ग विथ ईयर ऑफ पब्लिकेशन, और आपके सेग्रीगेटेड हैं टुवर्ड्स दी मॉडर्न एज ऑफ ब्रिटिश लिटरेचर. नाउ यू नीड टू कीप इट so that you can revise again and again. If you're willing, so join the membership of this channel. और जो भी members हैं they have already get this particular file of mine. और अगर उन्हें ये फाइल नहीं मिला है, प्लीज़ comment me below so that I can tag this on or in the last members of जो मेंबर्स ओनली का मेरा शॉर्ट्स है उसमें मैं आपको टैग कर दूंगी. मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा जिन भी मेंबर्स को नहीं मिला. एंड इफ़ यू आर विलिंग, सो यू गाइज कैन ऑल्सो गेट इट इन अ ईजीएस्ट मैनर. वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय बाय.